नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि आपका आज का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब अगला जो हमारे पास सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। सेकंड जो पेपर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ MGKVP हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी। तो हमारा है क्रिमिनोलॉजी, स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ये पेपर का नाम है। तो क्रिमिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। जैसा कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे कि अपराध शास्त्र उन्होंने पढ़ा है, तो लगभग मिलता जुलता वही अपराध शास्त्र है, उसी को पढ़ना है। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी LLB का ये सेक्शन हम पढ़ते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। हमको न्यू थ्योरी भी पढ़नी है तो काफ़ी अच्छा है। पहले हम क्रिमिनोलॉजी को समझते हैं। व्हाट इज द क्रिमिनोलॉजी? SCPG LLB 6 semester syllabus and MGKVP LLB 6 semester syllabus according to the affiliated colleges of related to MGKVP exam which will held on 31st July 2023, in which the first unit criminology we have discussed the definition of criminology. The criminology word is derived from the criminology is derived from the combination of, जो भी विद्यार्थी नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें और शेयर करें। हम LLB थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 यूनिट 1 सेकंड पेपर क्रिमिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी को यहाँ पर रीड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ महात्मा गांधी, श्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी। The word criminology is derived from the combination of two Latin words crimen means crime, crimen means crime, and logos which means study। क्राइम की स्टडी अगर हम कर लें तो इनको हम बोलते हैं ऑफ नॉलेज। क्राइम की स्टडी या नॉलेज को हम बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। द वर्ड क्रिमिनोलॉजी is derived from the combination of two Latin words, crimen which means crime and logos which means study or knowledge. Criminology is a socio-legal. Criminology is a socio-legal study which strives to discover the cause of criminality. The cause of criminality. And suggests appropriate remedies. Criminology is a socio-legal study which strives to discover the cause of criminality and suggests appropriate remedies. According to the Edwin सदरलैंड, देखिए ये सब सोशियोलॉजिस्ट है, ये सारे के सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये सोशियोलॉजी का एक पूरा रिसर्च पॉइंट है। सोशियोलॉजी में एक पूरा पॉइंट दिया गया है, एक ब्रीफ स्टडी है क्रिमिनोलॉजी। इसमें कि एडवर्ड सदरलैंड ने कहा है कि क्रिमिनोलॉजी
is the body of criminology is the body of knowledge. Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. एडविन सदरलैंड कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फेनोमेना। यहीं पर एक और सोशियोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छा डिफाइन करते हैं, डोनाल्ड टैफ्ट। डोनाल्ड टैफ्ट कहते हैं क्रिमिनोलॉजी in a general sense, आसान भाषा में, in a general sense is the study of crime and criminals. Crime and criminals. इन अ स्पेसिफिक, ये तो जनरल में हमने जाना कि क्रिमिनोलॉजी इन अ जनरल सेंस इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम की और क्रिमिनल्स की स्टडी को कहते हैं अपराध शास्त्र। लेकिन स्पेसिफिक वे में देखें, इन अ स्पेसिफिक सेंस इट सीक्स टू study criminal behavior, its goal being to reform the criminal behavior or conduct of the individual. Which society condemn? In a specific sense, criminology seeks to study criminal behavior, its goal being to reform the criminal behavior or conduct of the individual which society condemns. The word criminology is derived from the combination of two Latin words, which is crimen. Crimen means crime, and the logos means study or knowledge. The knowledge or study of crime is known as criminology. Criminology is a social legal study which strives to discover the cause of criminality and suggest appropriate remedies. According to the words of Edwin Sutherland, criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Donald Taft says that criminology in a general sense is the study of crime and criminals. In a specific sense, criminology seeks to study criminal behavior, its good being to reform the criminal behavior or
conduct of the individual which society contains. Now we have discussed about some other point related to criminology. समाजशास्त्र जो विद्यार्थी हैं वो पढ़े हुए हैं पहले से क्रिमिनोलॉजी, उनको बड़ी आसानी होगी इस पेपर को करने में. क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, now schools of criminology. Schools of criminology. Schools of criminology developed majorly मतलब प्रमुखता mainly during the 18th and 19th century. There are 4 popular schools of पूरे वर्ल्ड में 4 पॉपुलर स्कूल्स थे क्रिमिनोलॉजी की. The schools of criminology developed majorly during the 18th and 19th century. There are 4 popular schools of criminology, namely they are who? Pre-classical school, pre-classical school, classical school, positivist school, neoclassical school. Neoclassical school. Now we have discussed about the classical and neoclassical schools, in which we have the syllabus of 6th SAM. We have the 2 schools from the given list that have classical school and neoclassical school. सेकेंड जो हमारे पास टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है. हमने एज अ सोशियोलॉजिस्ट ये आपको बताया एज अ सोशियोलॉजी कि स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी होते कितने हैं वर्ल्ड लेवल पे. द स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी डेवलप्ड मेजरली ड्यूरिंग द 18th and 19th century. There are 4 popular schools of criminology. They are pre-classical school, classical school, positivist school एंड नियो क्लासिकल स्कूल्स. ये जो पेपर हमारा है टोटली प्योर इस पे है, थ्योरी पे है. और भी लेक्चर्स जो मैं इंपॉर्टेंट अगर इसमें कहीं आर्टिकल्स होंगे तो मैं उसको डिस्कवर करके लाऊंगा और कल के लेक्चर में बताऊंगा. आज हम एक समरी ले लेते हैं और यहाँ पे हम डील करने जा रहे हैं अभी अपने टॉपिक को क्लासिकल स्कूल. Pioneers of the
classical school of pioneers of the classical school of criminology are classical school of criminology are Caesar, Beccaria, Caesar Beccaria and Jeremy Bentham and Romini. And Romini. The main belief of this, the main belief of this school is that the main belief of this school is that, which is school? Criminology school, classical schools, that all men are self-seeking, वो स्वतः ही बीमार है, self-seeking, and therefore they attempt to commit the offense. अपना बचाव करना, ऑफेंस का मतलब बचाव करना. We have the category of this four, the pre-classical, classical, positivist, neoclassical. We have to opt our syllabus school of criminology that have classical schools. The pioneers of the classical school of criminology are Caesar, Beccaria, Jeremy Bentham and Romini. The main belief of this school, ऐसा विश्वास है इस स्कूल के लिए, is that all men are self-seeking and therefore they tend to commit the offense. According to this school, now we have according to this school, classical school, according to this school, men possess free will and act as per their pleasure and play. अपने दुख को व्यक्त करना, प्लीजर एंड पेन, जिसको कि हम प्लीजर एंड पेन को बोलते हैं सोशियोलॉजी की भाषा में हेडोनिज्म, क्रिमिनोलॉजी की भाषा में हेडोनिज्म, थ्योरी ऑफ डिमोनिज्म, the theory of demonism, act of men under the influence of spirit
under the influence of spirit is rejected by this, is rejected by this school. Now we have discussed classical school. The pioneers of the classical school of criminology are Caesar Buchanan, Jeremy Bentham and Romilly. The main belief of this school is that all men are self-seeking and therefore they tend to commit the offense. According to this school, men possess free will and act as per their pleasure and pain. It's called hedonism. Theory of demonism, act of men under the influence of spirit, is rejected by this school. Beccaria proposed that इस थ्योरी को आप पढ़ लीजिए, ये एग्जामिनेशन में आएगा और इसको जस्ट लाइक ए थ्योरी आपको लिख देना है। इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इनके नाम सही से लिखिएगा, जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसको लिखिएगा। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं उनको काफी इजी लग रहा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है Beccaria proposed that punishment of crime should be proportionate का मतलब होता है आनुपातिक, समानुपातिक, proportionate to its seriousness. Beccaria जो थे एक समाजशास्त्री जो कि अपराध शास्त्र पे रिसर्च किए, तो इन लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। Beccaria's मतलब Beccaria के थॉट, Beccaria's thought was such that ऐसी धारणा थी, ऐसा उसका सोच था Beccaria का, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे, ऐसी सोच थी। टॉर्चर वाज, देखिए इसमें सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है इस क्रिमिनोलॉजी के स्कूल में कि टॉर्चर क्या होता है, स्पिरिट्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल्स क्या होते हैं, क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्कूल क्या होते हैं, उनकी क्या नेचर होते हैं, क्या कंडक्शन होता है, किस तरह का बिहेवियर होता है, क्या होता है, कल्चर होता है, किस तरह से फील करता है इसमें क्रिमिनल की थेरेपी कैसे करते हैं, सारी चीजों का ब्यौरा है क्रिमिनोलॉजी। Schools of criminology. Beccaria proposed that punishment of crime should be proportionate to its seriousness. Beccaria's thought was such that torture was, क्या explain करते हैं कि torture was inappropriate. And thus, जो हम वर्ड यूज करते हैं कि इसलिए हुआ, तो ये thus है, thus का मतलब ये, and thus allowed कमजोर लोग allowed weak to incriminate and the strong would be found innocent.
Beccaria proposed that punishment of crime should be proportionate to its seriousness. Beccaria's thought was such that, ऐसा सोचती थी बेक्करिया महत्वपूर्ण समाजशास्त्री की, torture was inappropriate, तो आपका शोषण होता है, टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर या किसी तरह का टॉर्चर जो है कि वो होता था inappropriate, and thus और इसीलिए allowed weak to incriminate and the strong would be found innocent. Before the adjudication, न्याय का विरक्षा में adjudication, the ideology of विचारधारा, धारणा, the ideology of Beccaria is followed by, इनकी विचारधारा को फॉलो किया, अनुसरण किया, the classicalists, वितरकों द्वारा क्लासिफाई करना, उसको अलग एक रूम मिलाना, एक तरह से व्यवहित करके सजाना, तो ये है कि is followed by the classicalists. उन्होंने इनकी धारणा को बताया और इसमें कहा कि कौन, who focus on crime, जो अपराध पर ध्यान केंद्रित करता है, rather the criminal, rather the criminal. The classical school, पूरी डेफिनेशन होगी इसमें क्लासिकल स्कूल में क्या होता था. The classical school focus on principle of determine, principle of deterrence, principle of deterrence in place of punishment, सजा की जगह in place of अपराधियों को सुधारा जाता था, अपराधियों को सही किया जाता था. ये थे स्कूल्स हमारे 4 पूरे वर्ल्ड में. लेकिन बेक्करिया ने कहा, बेक्करिया के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं. बेक्करिया proposed that punishment of crime should be proportionate to its seriousness. इसकी सीरियसनेस को, गंभीरता को देखना है. बेक्करिया's thought, वो कहती थी, was such that, ऐसा कहती थी कि torture was inappropriate and thus ये असंभाविक होता है, इसलिए allowed weak to incriminate, मजबूर को, कमजोर को incriminate करता है, मतलब कि अनअपराधिक, and the strong would be found innocent, और मजबूत को innocent दिखाते हैं before the adjudication. The ideology of Beccaria is followed by the क्लासिकलिस्ट who focus on crime, जो कि फोकस क्राइम को करते हैं, उन्होंने फॉलो किया बेक्करिया से कॉन्सेप्ट को, आइडियोलॉजी को. rather the criminal, the classical schools focuses on principles of deterrence. तो क्रिमिनल से ज्यादा उन्होंने क्या किया, क्लासिकल स्कूल पर फोकस किया कि हम इसमें चलाएंगे कौन सा प्रिंसिपल, कि हम प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस चलाएंगे जबकि अपराध की जगह होगी, इन प्लेस ऑफ पनिशमेंट. हम उनको दंड नहीं देंगे, दंड की जगह हम क्या करेंगे,
हम एक प्रिंसिपल अलाउ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस। प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस को फॉलो करेंगे जहां पर की पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट कम से कम देने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद हमारे सिलेबस में है नियो क्लासिकल स्कूल, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है नियो क्लासिकल। व्हाट डू यू मीन बाय नियो क्लासिकल स्कूल? इन द गिवन 4 type of international school of criminology we have discussed earlier, the 4th type of school, that neoclassical school we have retained in syllabus of MGKVP criminology 6 and unit 1 paper 2, which will held on 31st July 2020. Now the 4th type of school we have discussed, and the list of the 4 we have opt the second school, classical school, because we have the schools of the bunch of these schools, we have the syllabus in the concern lecture that second school, classical school, and in our syllabus that are the neoclassical school is detailed. Now we have discussed about the neoclassical school. Neoclassical school, very descriptive paper. Neoclassical school, we have discussed about neoclassical school. According to this theory, ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी परिभाषा, ऐसी धारणा के आधार पर यह कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज a difference between total free will and determinism. डिटरमाइन करना, आकलन करना, उसको पता लगाना सही आकार क्या है, क्या कहना चाह रहा है सोशियोलॉजिस्ट, तो उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नियोक्लासिकल स्कूल वी हैव देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल free will and determination, and argues that मतलब डिस्कशन हम करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, जो हम वहां पर मजबूती से बात को रखते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यू करना। एंड argues that no person have, क्या कहा गया कि no पर्सन है, ये सारा क्रिमिनल के बिहेवियर में चल रहा है। क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए जो स्कूल चलाए गए वो है क्रिमिनोलॉजी, उनके बिहेवियर को हम रीड करते हैं, उनके बिहेवियर को हम ट्रैक करते हैं, उनका पूरा का पूरा इलाज करते हैं। तो ये ऐसे स्कूल्स थे जो कि 4 तरह के पूरे वर्ल्ड में चलाए गए थे, जिसमें हमने सेकंड वाली कैटेगरी में से क्लासिकल स्कूल लिया और हमारे सिलेबस में था 4th कैटेगरी स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की नियो क्लासिकल स्कूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस neoclassical school theory there is a difference between total free will and determinism, and argues that कहा गया कि no person has total free will, no person has total free will. The neoclassical school allows मतलब परमिशन देना, पूरी तरीके से हम उसको अलाउ कर देते हैं, allows for mitigating factors to be
mitigating factors to be reviewed by our judge, reviewed by a judge as per his, उस व्यक्ति के बारे में बात होगी जो कि उस प्रोसीजर में है, discretion, as per his discretion. Before the advent of this school, अगर इस स्कूल का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले क्या होता था? Before the advent of this school, एडवेंट का मतलब खोज करना, बताना, समझना, उसको खोज कर निकालना। बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस स्कूल क्या होता था अगर ये स्कूल नहीं था तो? ऑल दी offenders were treated alike, मतलब उनके साथ बिहेव इस तरीके से किया जाता था। ट्रीटेड एलाइक का मतलब नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट एज, कोई भी उम्र हो, मतलब कि वहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाती है, कोई भी उम्र पे आप कैसे किसी चीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो एज फैक्टर भी फॉलो करता है हमारे पास यहाँ पे। मेंटल कंडीशन, कोई भी एज हो और कोई भी मानसिक स्थिति हो और कोई भी लिंग हो, मतलब कि कोई भी जेंडर हो, फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, लेकिन हमारे पास जो न्यायपालिका में व्यवस्थाएं हैं उसमें अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। चाहे वो इंटरनेशनल लॉ में हमने देखा हो, चाहे हमने नेशनल लॉ में देखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक व्यक्ति के लिए हर एक एज का, हर एक मेंटल कंडीशन का, हर एक स्पेसिफिक सिनेरियो का एक स्पेशल लॉ होता है, एक स्पेशल चेस्टर होता है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, जो कि कहा गया कि जब नहीं था नियो क्लासिकल स्कूल, बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस स्कूल, इसकी खोज हुए के पहले, ऐसी विचारधारा नहीं आने के पहले था कि ऑल द ऑफेंडर्स, सभी के सभी वर ट्रीटेड अलाइक, किए जाते थे, ऐसे बिहेव किया जाता था उनके साथ कि नो मैटर व्हाट एज, उनकी उम्र क्या है कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बालक हो 6 साल का या तो 65 वर्ष का बुजुर्ग हो, तो कैसे होगा? उसकी शारीरिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, उसका अपराध अलग अलग है, उसकी शरीर को सहने की क्षमता, दंड की अलग अलग है, तो किस प्रकार से आप एक तरह से जनरलाइज कर सकते हैं? तो ये चीजें गलत थी। और उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? शारीरिक अवस्था में आपकी मस्तिष्कीय अवस्था, और उसके लिंग को कि पुरुष है कि महिला है, तो ये चीजों को भी ध्यान रखते थे। और लेकिन वहां पर क्या होता था? एंड सो ऑन, ऐसी चीजों को नहीं ध्यान में लाया गया। लेकिन जब हमने नियो क्लासिकल स्कूल की एडवेंशन की एक रूपरेखा तैयार की, तो वहां पर हमने सब चीजों को यहां पर व्यवस्थित किया। नियो क्लासिकलिस्ट, the grammatical meaning of the classicalist that कि जो नियो क्लासिकल है उनको फॉलो करने वाले, उनके साथ जुड़ने वाले, उनके साथ काम करने वाले, वही जो नियो क्लासिकल हैं, तो इसको कहते हैं नियो क्लासिकलिस्ट, फेमिनिस्ट, मैस्कुलिनिस्ट, नेशनलिस्ट। यहां पे नियो क्लासिकलिस्ट उससे जुड़े हुए, सॉ दिस, उन्होंने देख लिया था, देखा, सॉ का मतलब देखा, इस चीजों को देखा, एज अनफेयर, ये गलत हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, एज अनफेयर, ना तो एज बार देखते हो, ना मेंटल कंडीशन देखते हो, ना जेंडर कंडीशन देखते हो, एंड सो ऑन, किसी तरह की विविधता को नहीं देखते हो, हर किसी की शारीरिक स्थितियां और दंड को सहने की क्षमता उसके शरीर की
किस तरीके से एक समान होंगी। तो यही कहा जा रहा है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस नियो क्लासिकल स्कूल ऑल द ऑफेंडर्स वर ट्रीटेड अलाइक नो मैटर्स व्हाट एज, मेंटल कंडीशन, जेंडर एंड सो ऑन। नियो क्लासिकलिस्ट saw this as unfair, ये बहुत गलत हो रहा है, and unjust, और बहुत ही अन्यायिक है। just is given from, comes from the justice, justice comes from the jurisdiction। तो just unjust means अन्यायिक तरीके से, अनैतिक बात हो गई कि ये गलत है, और न्यायिक तरीके से भी अन्यायिक है, एंड अनजस्ट एंड thus, हमने आपको thus का मतलब बताया था, इसलिए, मजबूती से कहते हैं इसलिए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में thus। इसीलिए अन्याय था, अनफेयर था, इसीलिए, एंड thus allowed for, परमिशन दी गई, किसके लिए? allowed for change to, परिवर्तन के लिए, change to ट्रांसपायर, ट्रांसपेरेंट का एक एडजेक्टिव, ट्रांसपायर। ट्रांसपेरेंट का मतलब स्पष्ट, एक तरीके का, न्यायपूर्ण। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं है कि इस पार से उस पार छिलकने वाला। ट्रांसपेरेंट का मतलब है एकदम पारदर्शी, न्यायोचित। यहां पर जो हमारा यहां पर एडजेक्टिव यूज हुआ है ट्रांसपायर। नियो क्लासिकल स्कूल के आने के पहले ऑल द ऑफेंडर्स वर ट्रीटेड अलाइक नो मैटर्स व्हाट एज और व्हाट मेंटल कंडीशन और व्हाट जेंडर एंड सो ऑन। देन द नियो क्लासिकलिस्ट सॉ दिस, उन्होंने देखा इस चीजों को एज अनफेयर, ये गलत हो रहा है, एंड अनजस्ट, अन्यायिक है, अनैतिक है, एंड thus इसलिए अलाउ किया, अलाउ फॉर चेंज टू ट्रांसपायर, एकदम निष्पक्ष व्यवस्था के लिए चेंज किया ये सारी व्यवस्था को। दिस थ्योरी अलाउज फॉर, द नियो क्लासिकल थ्योरी अलाउज फॉर, उसने परमिशन दी, थ्योरीज ने, कॉन्सेप्ट ने परमिशन दी नियो क्लासिकल थ्योरी को, क्या किया? अलाउज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ, ऐसा मानिए या ऐसा बोध हो जाए, कंसिडरेशन ऐसा मान लीजिए, कंसीडर करना, कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स पर ब्रीफ डिस्कशन किया, इसको पूरा का पूरा वॉच किया, कंसीडर किया कि आखिर मामला क्या है। लाइक जैसे कि उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, लाइक फिजिकल, क्या वो अपराधी चल पाते हैं, क्या वो अपराधी रेंग भी पाते हैं, या वो अपराधी दौड़ पाते हैं, क्या वो पुरुष है या महिला है, उसकी मानसिक अवस्था क्या है, इन सबों पर कंसीडरेशन किया गया। कंसीडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स, तो इसी फैक्टर्स पर, लाइक जैसे कि फिजिकल, चलने फिरने में कैसा है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, एंड सोशल इन्वायरमेंट, और उसका सामाजिक अवस्था क्या है, सोशल, सामाजिक वातावरण में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, इन्वायरमेंट, वेयर, जहां इंडिविजुअल, जहां पर वो व्यक्ति वॉज प्लेस्ड, रखा गया, यही थी नियो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी। यही थी आपकी महत्वपूर्ण नियो क्लासिकल स्कूल्स, क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी के इस महत्वपूर्ण